start. Let us now start a quadratic, the new chapter, and the name of the chapter is quadratic equation. Before beginning, let me tell you a very simple situation. एक situation discuss करते हैं. Suppose the question is saying, that the sum of two numbers is 27. I'm sorry. The sum of two numbers is say the sum of two numbers is 12, and the product of the two numbers, the sum of two numbers is 12 and the product of two numbers is 27. I have to find the numbers. This is the situation you Sir, have. 9 and 3. एक मिनट मुझे पता है you know the answer. Just let me explain. So this is the situation you have. Now in this situation, what you will do, or what anybody will do, even what I will do is, I will write the equation like this. Let one number is x. एक second, just a minute. I will write it like this कि सर one number को x मान लिया, तो दूसरा नंबर मुझे मिला 12 minus x. Now according to the question, x multiplied by 12 minus x is equal to 27. X multiplied by 12 minus x is equal to 27. So I will have x square minus 12x, x square minus 12x plus 27 is equal to 0. This is the equation, and since the degree of this equation is 2, this is a quadratic equation. इक्वेशन क्या होती है, ये बात हम पिछली क्लास में पढ़ कर आए हैं. पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था. When a polynomial is equated to 0, when a polynomial is equated to anything, or if a polynomial is equated to some another polynomial, or say some another number, then it becomes an equation. Overall, if my polynomial is equated to any polynomial, I can simplify it and I can write that my resulting polynomial is being equated to 0. So this is the concept of an equation. And if my polynomial is a quadratic polynomial, then my equation becomes a linear quadratic equation. So this is what we are going to study. एक example और लेते हैं. Now this is a hypothetical example. I don't know whether the answer will be correct or not. ये example तो मुझे याद था, तो मैंने इसलिए इसका example दे दिया. The product of length and the length of a field is 3 meters more than its breadth, and the length of a rectangular field is 3 meters more than its breadth, and the area of the rectangular field is say 100 meters square, or say 200 meters square. You have to find the length and breadth. Again, you will get a quadratic equation here. Okay. Sir, can you again repeat the question? See, the question is not exact because we were getting some irrational roots there. See, the length of a field is 1 meter more than. Write the question. The breadth of a field is 1 meter more than 2 times of its length. If the area of the field is 300 meters square, then you have to find the dimensions of the field. This can be your answer. Can you repeat the question once? No, there is no need to repeat the question. Just listen to me. If the breadth of the field is 1 meter more than twice its length, the breadth of a field is 1 meter more than twice its length. If the area of the field is say 300 meters square, you have to find the dimension, and the field is say rectangular. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए whatever equation you will be getting in the end, that is called as the quadratic equation.
that equation is called as a quadratic equation. ये तो हो गया भाई हमारा quadratic equation का real life में example कि सर ये quadratic equation ठीक है, समझ लिया कि भाई if my polynomial of degree 2 is equated to 0 then I will say that it is a quadratic equation. लेकिन बात समझ में नहीं आ रही. ठीक है, I know that 3x square plus 7x plus 5 is a quadratic equation, बस ठीक है, but how अब मेरे को feel नहीं आ रही है चीजों की. This is how you can get the field if there are two numbers and such that the product of the two numbers is 27 and their sum is 12. Then the way by which you will find the individual two numbers. See, when I said the question, Sunay immediately gave the answer, but he might have done some number crunching because here the numbers were easy, but he at the end of the day, he also used quadratic equation only. X square minus 12x plus 27 was his equation. He solved it very quickly and he gave me the answer that the numbers are 9 and 3. So this is how the quadratic, this is what is the application of quadratic equation. This is what is the application of quadratic equation. Now let us come here. What is a quadratic equation? When a polynomial of degree 2, when a polynomial is degree 2 is equated to 0, it is called as a quadratic equation. Example हो गया 3x square plus 7x plus 5, it is a quadratic equation. ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई इस quadratic equation की. Now let us come to the roots of the quadratic equation. Sir, what are the what are the roots of the quadratic equation? The roots of the, if I talk about the roots of the quadratic equation, beta, a real number alpha is called the root of the quadratic equation if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. Any real number alpha is called as a root of the quadratic equation if p of alpha is equal to 0. ठीक है सर, तो this is called as the root of the quadratic equation. हम लोगों ने जब पिछली बार हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था तो हमने ये एक चीज देखी थी कि my quadratic equation can have two roots, one root or no root. There is one more condition where my quadratic equation can have infinitely many roots. In that case it becomes an identity. ठीक है, but basically we will be concerned about three conditions only. That is, it has two roots, it can have two roots, it will have one root or both the roots are equal, and it will have no root. क्या क्या कंडीशंस होती है नो रूट और इन सभी चीजों की क्या क्या कंडीशन होती है, that we will discuss later on. कि नो रूट की क्या कंडीशन होती है, टू रूट्स की क्या कंडीशन होती है, इन सारी चीजों की क्या कंडीशन होती है, that we will discuss. अभी फिलहाल ax square plus bx plus c पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. Those who don't remember the discussion of chapter polynomial, they can watch the recordings also, or they can read from their books also what is this this chapter on polynomial was. Now if I am talking about ax square plus bx plus c equal to 0, now here I will have different conditions. Here first of all I should remember that a comma b comma c are real numbers. a comma b comma c ये जो तीनों हैं वो रियल नंबर्स है. रैशनल हो इरेशनल हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तीनों मेरे रियल नंबर होने चाहिए. फर्दर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर a 0 हो गया तो ये जो है मेरा रिड्यूस होकर एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी. मुझे लीनियर इक्वेशन की बात नहीं करनी है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है. सो a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. This is my ax square plus bx plus c equal to 0 is a general representation of my quadratic equation. And if alpha is, I say that alpha is the root of the equation if p of alpha is equal to 0. If p of alpha is equal to 0, then alpha is the root of the equation. क्या होगा उस केस में, a alpha square plus b alpha plus c will be equal to 0. Now this will be my root of the equation. A quadratic equation
किसी भी केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते हैं. It cannot have more than two roots. Either it will have no root, either it will have one root, either it will have two root. It cannot have more than one root. आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ग्राफ वगैरह बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. We got different type of cases. अगर मैं बात करूं तो I was telling you about the graph. हम लोगों ने कुछ graphs पढ़े थे. तो I will discuss the graph when my a is greater than 0. Here I will have different graphs. कैसे कैसे graph आएंगे? एक तो सर ये case हो सकता है when my graph is not touching x-axis at any point. एक मेरा जो graph हो सकता है, एक ये हो सकता है. Here my graph will touch x-axis at two distinct points. और दूसरा जो मेरा ग्राफ हो सकता है that can be like this. My graph is touching, my polynomial is touching x-axis at only one point. My polynomial, now take this as touching, my polynomial is touching x-axis at only one point. So here I will have two equal roots. Here I am having no real roots. Here I am having two roots. ठीक है, यहाँ पे दो रूट्स हैं, यहाँ पे 0 रूट्स हैं, और यहाँ पे both the roots are equal. Both the roots are equal. These are the two conditions. These are the three conditions that I can have. These are the three conditions that I can have. ठीक है, चलो अब फिर आगे बढ़ते. अब यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा की भी एक बात आ जाती है. I remember the last question that I did. Now if my graph is, if the leading coefficient, that is if the value of a is greater than 0, then my graph will open upwards. ओपन अपवर्ड्स का मतलब ये होता है बेटा कि इट विल हैव ओनली ए मिनिमम वैल्यू, दैट इज दिस. either it has one solution, two solution, or zero solution. It will have a minimum value after which the parabola will keep on opening upwards. Agar if a is greater than 0, in that case what will happen, it will have the parabola, the shape of this graph will become downward and it will have a maximum value. The coordinates of this point are given by ये जो पॉइंट है जहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, या इन दिस केस ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, दैट इज गिवन बाय -b/2 है, कॉमा -d/4 है. ये d क्या होता है, इस d के, ये d किस चिड़िया का नाम है, इस d के बारे में हम अभी पढ़ेंगे. इस d को हम b² - 4ac बोलते हैं, वेयर a, b एंड c are the usual, have this a, b and c have their usual meaning. Usual meaning मतलब हमारी जो quadratic equation है, that is ax² plus bx plus c. If my quadratic equation is ax² plus bx plus c, then the discriminant is given by b² - 4ac. अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कुछ और है तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट कुछ और हो जाएगा. these terms are defined upon the standard, on the basis of standard quadratic equation. Now let us move further. सर हाँ बोलिए. सर इसमें एक डाउट था कि ये आपने बोला कि मिनिमम वैल्यू जब ओपन अपवर्ड है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी और ओपन डाउनवर्ड है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. लेकिन सर इसमें हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम दिख रही है, लेकिन हमें तो पॉलिनोमियल तो x में है, तो फिर हमें y की वैल्यू पॉलिनोमियल तो x में है बेटा, पॉलिनोमियल तो x में है. y is equal to ax² plus bx plus c. This is your polynomial. So this polynomial is defined for all the values of x. आप x की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, you will get some value. You will get some value of y, but the point is the value of y will be maximum or the value of y will be minimum. आपको इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है. There is a relationship between x², x and the constant. On the basis of different values of x, you will get different values of this function. Now this function will have a minimum value, this function will have a maximum value. x तो मेरा वेरिएबल है, x की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम थोड़े ना हो सकती है. x की वैल्यू कैन बी एनीथिंग. It is my variable. On the basis of different combinations, I got a polynomial. इस polynomial की कोई maximum या minimum value होगी. This is what I have calculated.
बात समझ में आई? यस सर, आ गया। चलो सर हाँ बोलिए। सर वो जो ग्राफ था सर, उसमें अगर एक की वैल्यू मतलब 0 से कम हो तो सर ग्राफ ओपन अपवर्ड, और जब कम मतलब 0 से ज्यादा हो तो ओपन डाउनवर्ड, वैसे ही बोला था ना आपने? वैसे ही now the next thing is solving the quadratic equation. Let us now come to the topic. The first thing is solving the quadratic equation. तो पहला मेथड जो होता है that is called as factorization method. अब ये factorization method क्या है? अब मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, वही मेथड है factorization का. I want to split my middle term. I want to split my constant term as a product of two numbers such that the sum of those two numbers is my middle term. This is what is the logic behind this. यहाँ पे usually जो x square का coefficient होता है वो 1 होता है. Even if it is not, then also there is no problem, we can do it. For example, if I want to say that let us try to factorize x square plus 5x plus 6. X square plus 5x plus 6 equal to 0. Now what I will do, now see, factorization thing we have done in class 9. This factorization we have done in class 9, लेकिन वहां पे हम सिर्फ factors लिखते थे. This is we are doing the here we are trying to solve a quadratic equation by using the factorization technique. हमने जब इसको फैक्टराइज किया तो मुझे मिला x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब मुझे तो इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? रूट्स विल बी x plus 2 is equal to 0, that gives me x equal to minus 2, or x plus 3 equal to 0, that gives me x equal to minus 3. So there will be two roots of the quadratic equation, that is x equal to minus 2 and x equal to minus 3. Minus 2 put karo is equation mein, you will get the value as 0. If you put minus 3 in this equation, you will get the value as 0. Factorize kaise karna hai? Factorize hum logon ne 9th standard mein seekha hai. Jinko nahi aata factorize, 9th standard ke concepts weak hain, please डू द फैक्टराइजेशन ऑफ क्लास 9th. कोई शर्म वाली बात नहीं है अगर आप 9th क्लास का फैक्टराइजेशन करेंगे तो, लेकिन कर लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चंस करने टाइम पे दिक्कत आएगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो प्लीज सॉल्व क्वेश्चंस बाय फैक्टराइजेशन. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस हियर इन द क्लास आल्सो, बट it's up to you. If you don't know the concept of class 9th, you have to do. Next is the method by completion of square. Now believe me my dear friends, this is a method जिसमें most of the students find the problem. I don't know why. Let us try to discuss this method of completion of square. ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब ये कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर की जरूरत क्यों पड़ी? कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर की इसलिए सर जरूरत आपकी पड़ी. आवाज बहुत कट हो रही है भाई बाकियों को भी आवाज कट आ रही है क्या? Now the quadratic equation is, देखो बेटा इस टाइप के quadratic equation में क्या होता है? First of all, when I have, अच्छा पहले तो बात करते इसकी जरूरत क्यों पड़ी. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई बार क्या होता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फैक्टराइज. छोटा नंबर था तो हमने फैक्टराइज कर दिया. 27 था तो सुने ने तुरंत बता दिया कि सर 9 और 3 होगा. लेकिन मान लो कोई बड़ा नंबर होता तो शायद हमें बहुत टाइम लग जाता. हमें बहुत टाइम लगता है भाई, मेरे को तो लगता है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे टाइम लगता है. आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद दैट फैक्टराइजेशन मेथड. तो उसका एक अल्टरनेटिव है, एंड दैट अल्टरनेटिव इज, and the name of that alternative is completing the square method. अब सर इस completing the square method में क्या होता है? The first and foremost thing of this completing the square method is make the coefficient of x square unity if it is not. जो मेरा इक्वेशन होता है बेटा वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0.
अब इसके कोफिशिएंट को यूनिटी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को दोनों को a से डिवाइड कर दूंगा, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए, और सर 0 अपॉन ए तो 0 ही होता है ना। अब मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं, अब इसके आगे समझाता हूं क्या होगा। देखो अब इसके आगे क्या होगा कि अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा है भाई? जिसने नहीं पढ़ा हाथ खड़ा करो, बताऊं जरा, याद दिलाऊं उसको। पढ़ा है ये फॉर्मूला? सभी लोगों ने पढ़ा है। द फॉर्मूला इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। देखो ध्यान से समझना, यहां पे एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2ab मुझे चाहिए। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, बताना मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? से यस और नो लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यस सर, ये वाला जो टर्म है b अपॉन 2a, इसका मैं स्क्वायर ऐड करूंगा और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो नाउ इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ये मैंने कर दिया। अभी मुझे थोड़ा ठीक ठीक नहीं लग रहा है, कुछ कुछ चीजें अभी अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं, c अपॉन a को राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं, एंड दिस विल बी x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। सो फाइनली आई विल हैव, आई एम इरेजिंग, no I won't erase, I will go here. Finally I will have x square plus b upon 2a whole square will be equal to b square upon 4a square minus c upon a, that reduces to b square minus 4ac upon 4a square। ठीक है, इसको एलसीएम ले लिया तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसको मैंने क्या किया, नाउ आई विल राइट इट एज x प्लस बी बाई ए, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया, मुझे मिल गया x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सर जो डिनोमिनेटर वाला 4a स्क्वायर था वो बाहर निकल के 2a बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, सो दिस विल बी x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसी मेथड को आगे चल के श्रीधराचार्य मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, सो दिस इज how I will calculate by both the roots. This is the method of completion of square. This is called the method of completion of square. अब जरा एक अच्छा सा डायग्राम है, जरा इस डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखो भाई, मुझे x स्क्वायर प्लस 4x को स्क्वायर कंप्लीट करना था, तो मैंने क्या किया, पहले x, ये जो x इंटू एक्स था और ये जो 4 इंटू एक्स था, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। फिर मैंने क्या किया, ये जो 4x था इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया x स्क्वायर प्लस 2x, दूसरा मेरा हो गया x स्क्वायर। अब जो है फाइनली मैंने क्या किया, इसमें मैंने कुछ चीजों को ऐड किया। फाइनली आई गॉट दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया था मेरा,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x मेरे पास था। मैंने क्या किया, फिर इसको x प्लस 2 का लेंथ बनाया एंड इधर भी मैंने इसको 2 का लेंथ बनाया। फाइनली आई गॉट दैट दिस बिकम माई x प्लस 2 होल स्क्वायर। लेकिन एक एक्स्ट्रा मैंने जो ऐड किया था वो मैंने ये 4 का स्क्वायर ऐड किया था, तभी तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना था। भाई x लेंथ का तो ये ऑलरेडी था, मैंने 2 लेंथ इसमें और ऐड कर दिया तो ये हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर। फाइनली जो मैंने एक्स्ट्रा जो 4 ऐड किया था वो मैंने एक्स्ट्रा 4 इधर से हटा दिया। सो दिस इज हाउ आई मेड दिस स्क्वायर। ठीक है, चलो the next method is we will be solving the question, then I will be discussing your then I will discuss your issues. Now the next method is by using the quadratic formula. Quadratic formula means this method is also called as Sridharacharya method. इस मेथड में भी बेसिकली we do the same things. X plus b by 2a whole square will be equal to b square minus 4ac upon 4a square. That will give me x is equal to minus b by 2a plus minus b square minus 4ac upon 2a. This is also called as the using the quadratic formula. अब आपके पास सवाल ये आता है सर कि सर एग्जाम में अगर मेरे पास पूछा जाए कि आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग द quadratic formula, or if I have to solve the question using the completing the square method, हम क्या करेंगे, how I am supposed to distinguish. देखो, if the question is saying using the quadratic formula, you directly write this x is equal to minus b by 2a plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. If they are saying that using the completion of a square root, you have to complete the square, then you have to show it. So this is what can be the distinguish. वैसे as far as I am concerned, I don't find any distinction between the two methods. The two methods are basically the same. If you know any distinction, do tell me that yes sir, this is the distinction. Using that completion of square method only, that formula was derived. Yes, that formula was derived using the completion of square method only. So this method, this quadratic formula method, is also known as Sridharacharya method. और ये जो b square minus 4ac आया था, इस b square minus 4ac को हम लोगों ने discriminant बोला था. Now my roots are given by alpha is equal to minus b plus square root d upon 2a, beta is equal to minus b minus root over square root of d divided by 2a. अब देखो यहाँ से एक छोटी सी चीज और डिराइव होती है. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर कैन बी, नाउ ये जो स्क्वायर रूट है, दिस वैल्यू ऑफ d इज डिपेंडिंग अपॉन b स्क्वायर एंड 4ac, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac. देयर कैन बी ए कंडीशन व्हेन दिस डिफरेंस इज निगेटिव. ऐसा हो सकता है जब ये डिफरेंस जो है निगेटिव आए. भाई बी स्क्वायर की वैल्यू 36 है, 4ac की वैल्यू 40 है, द डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी निगेटिव. उस केस में आपकी कैलकुलेशन को बार बार चेक नहीं करना है. उस केस में ये होगा कि द रूट्स आर नॉट रियल. ये वही वाला केस हो जाएगा व्हेन माय ग्राफ इज नॉट टचिंग एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट. ये वही वाला केस हो गया when my graph is not touching x-axis at any point. So here I will have minus b plus my here I will have d as negative और square root of d is not defined. इस केस में हम कहेंगे that there is no real root. Don't try to be over smart. Don't try and write the roots are imaginary or roots are blah blah, the roots are ye, the roots are wo. Please don't try to be over smart. Use the words, use the terms that are specifically mentioned in your textbooks. ये मत लिख के आ जाना कि the roots are imaginary, I will give you 0. Your examiner will also give you 0. फिर मत आके लड़ना कि सर नहीं सर ये तो ठीक है और ये तो गलत है. ठीक है, चलो. So okay, so this was
this was all about the first part of the theory, that depending upon the discriminant, I can say whether the roots are real or not. Now, there are different conditions of the roots that we will discuss later on. But before that, let us discuss some of the questions. Yeah, let us discuss some of the questions so that you guys have something to do at your home also. Okay, you have to tell me which of the following are quadratic equation. Come on, first to 8th part first. Which of the following are quadratic equations? First part, is it a quadratic equation? Yes, sir. Yes, Is it sir. it is a quadratic equation. Very good. Second part, is it a quadratic equation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Third Yes, one. sir. Third one, is it No, a sir. quadratic equation? No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. No, Cut sir. karo sir. आगे चलो sir. Fourth part, is it a quadratic equation? No, sir. No, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. No, sir, है ये equation है. क्यों नहीं है सर? यहाँ sir, पे तो yes, क्योंकि sir, पहले yes, sir, यहाँ yes, पे sir. square हो 2x जाएगा, दूसरे स्क्वायर में है, x यहाँ पे x हाँ, sir, स्क्वायर हाँ, sir, कैंसिल है हो ये। जाएगा, है यार. फिफ्थ वन, is it a quadratic equation? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Sixth one, is it a quadratic equation? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. Very good, sir. Seventh one, is it a quadratic equation? Yes, sir. Yes, sir. sir. हो. कैसे सर? Sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे सर? नहीं सर, ये तो क्यूबिक है. भाई 2x sir. इंटू Yes, एक्स sir, ये स्क्वायर, cubic है। भाई 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब होगा, यहाँ पे x क्यूब मिलेगा, तो ये तो x फाइनली x क्यूब बच जाएगा ना, क्यूबिक होगी ना हाँ, यार sir. ये. तो दिस इज नॉट ए सर इसलिए तो क्वाड्रेटिक. नो बोला था, लेकिन आपने कुछ लोगों ने यस confuse बोला कर दिया। था, कुछ लोगों ने यस बोला था. एट्थ वन, Sir, quadratic. Quadratic, yes, sir. नो सर यस सर बोलो ना यार, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है वो तुम लोग समझो. Sir, Yes, yes, हाँ है sir. सर. यस सर, चलो सर आगे चलो सर. सर सिक्स्थ वाले में एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं हो जाएगा? सिक्स्थ वाले में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है क्या? सिक्स्थ वाले में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है भाई? Sir, हमने हाँ, तो नो sir. सर ही बोला था. हाँ, सर, आपने आपने तो फिर ठीक लगा टोका था। क्यों नहीं? आपने ठीक कर दिया, टोका मैंने क्यों no ही नहीं? बोला. भाई सिक्स्थ वाले में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कभी कभी फ्लो में ऐसी मिस्टेक हो जाती है. थैंक यू वेरी मच. सिक्स्थ वाले में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. और तो कोई नहीं है जिसमें कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो? नहीं सर. ठीक है नहीं, सर, आगे चलो सर. ये छूट गया था क्या थर्ड पार्ट? नहीं नहीं, थर्ड नहीं, पार्ट sir, cross तो लगाया है. लगाया लगाया. The represent the following situation in the form of quadratic equation. I'm not going to deal with this. आप लोग कर लोगे इसे. I'm leaving this. हाँ. Next, which of the following is a quadratic equation? आप बताइए जरा. First part. फर्स्ट ही है, सेकंड तो नहीं है. First है और second नहीं है. Sir, second भी है. और first हाँ सर, फर्स्ट हाँ, sir, दोनों है. क्या first एक polynomial है? सर एक्चुअली फर्स्ट वाला Sir, पॉलिनोमियल वो नहीं तो है. polynomial और, है क्योंकि वो उसका irrational या हाँ, sir, negative क्योंकि वो exponent x- हो जाएगा. 1/2 है पावर, इसीलिए तो फिर तो ये जब पॉलिनोमियल नहीं है. तो ये जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से होगी यार? ऐसे मत करो यार. सेकंड वन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो फर्स्ट पार्ट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. किसी को डाउट है यहाँ पे? है तो पूछ तो भाई. सर सेकंड वाला कैसे वो बता सकता? सेकंड वाला क्यों नहीं होगा बेटा? एक्स X स्क्वायर minus प्लस x वन plus इज 1. इक्वल टू स्क्वायर एक्स. माइनस. So this will be equal to x square minus x plus 1. हो गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी? ऐसा क्यों कि मतलब सारी इक्वेशंस पॉलिनोमियल होने चाहिए, ऐसा होता है? हाँ, हमने पहले पॉलिनोमियल जरूरी पढ़ा था, फिर जरूरी हम होता- लोगों ने पॉलिनोमियल पे ही तो डिफाइन किया था ना बेटा. पॉलिनोमियल से ही तो हम आगे बढ़े थे. अभी तक हम लोगों ने ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात ही नहीं की है जो पॉलिनोमियल नहीं है. और जहां तक मुझे पता है हम लोग 12th तक ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करते भी नहीं है. उसके आगे करते होंगे, उससे आगे मैंने भी नहीं पढ़ा है. उससे आगे मैंने भी नहीं पढ़ा है. चलो आगे बढ़ो. अच्छा हाँ सर. Okay, now the question is saying, okay, determine whether the given values are the solution of the given quadratic equation or not. X equal to 1/3, is it a solution of the quadratic equation? X equal to 1/3, is it a Yes, solution? sir. Yes, sir. Yes, Come sir, on, we yaar. are Come on. getting 0. Come on, yaar. You should learn to do these calculations faster. क्या कर रहे हो यार? 4 महीने में NTSC का एग्जाम है और उसके बाद इतना टाइम लगा रहे हो. 3/9
प्लस 2/3 माइनस 1, ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उससे पहले आंसर आना चाहिए, स्पेशली सम ऑफ यू। यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग, सुने क्या कर रहे हो बेटा? द आंसर शुड कम बिफोर आई फिनिश द क्वेश्चन। पार्ट सेकंड, जल्दी बताइए, इज इट ए सॉल्यूशन और इट इज नॉट? You have to check both the values, remember that thing. सर पहला तो नहीं है लेकिन दूसरा वाला है। पहला x नहीं इक्वल टू ए अपॉन बी, x इक्वल टू ए अपॉन बी नहीं है, बट x इक्वल टू बी अपॉन ए है। So you will say that the given values are not the solution. The given values are not the solution, only b by a is the solution. Very good, very good. I got quicker answers. चलो आगे बढ़ो। Find the value of k for which the given value is the solution of the quadratic equation. Come on, tell me. Find the value of k for which the given value is the solution of quadratic equation. Fast. Sir, first तो का -4 फर्स्ट का माइनस First का इक्वल टू -4 माइनस k की जगह 1 माइनस रखो, k की जगह 1 रखो। 1 स्क्वायर प्लस 3 इज 4, k प्लस 4 इक्वल टू 0। भाई k की जगह 1, x की जगह 1 रखा, पुट x इक्वल टू 1। आई हैव टू राइट ऑल्सो। क्या बोल रहे हो बेटा? एक मिनट बेटा। 1 स्क्वायर प्लस सर माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, पहला तो कर लेने दे यार। k प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट गिव्स मी k इक्वल टू -4। नेक्स्ट इज, अभी आपको दूसरे का x की minus जगह AB. x की जगह सर k इक्वल टू ए बी। x की जगह a रखो, ए बी ए बी minus a into a Minus plus AB. b plus k equal to 0. So k will be equal to plus ab. K सर will, माइनस माइनस कट हो प्लस ए जाएगा। बी प्लस ए बी K Yes, sir, will be plus equal AB. to plus ab. Those who are giving minus ab, they are wrong. K will be equal to plus ab. मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि मुझे क्वेश्चन कर लेने दो और आप लोग जल्दी से आंसर भेजते हो। Keep it up. K will be equal to plus ab. Those who are giving K equal to minus ab, they are wrong. Next, find the solution of the quadratic equation. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब इस तरीके की बात लिखी होती है, find the solution of the quadratic equation, you can go by any of the method. अगर सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, you can use any of the method. I'm not talking about school exam, I'm talking about board exam. क्योंकि स्कूल एग्जाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कि वो टॉपिक उस समय तक पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है. According to that you have to decide. But if -1, -5. if it is coming in your board Sir, exam, okay. you can use any of the method. So I will use x will be equal to -6 plus minus b square minus 4ac, that is 24 Sir, minus minus 1 minus 20 divided by 2, that is -6 plus minus 2 divided by 2, which is equal to -4 comma -4 comma सर वो minus उधर सर माइनस सर 24 की जगह 36 होगा ना, 20 स्क्वायर। एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 36 होगा। 36 होगा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 36 होगा, ये 4 होगा। अब देखो थोड़ी सी गड़बड़ जो मेरे से होती है, ये गड़बड़ आप लोगों से भी हो सकती है, तो मेरे को कोई एग्जाम नहीं देना है, आप लोगों को देना है। सो यू गाइज हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पीड भी रखो और बैलेंस भी मत खो। सो फाइनली योर आंसर विल बी -5 comma -1. Your answer will be -5 comma -1. I'm not supposed to give any board exam. You are supposed to give. I'm not supposed to give any NTSC exam. You are supposed to give. So you have to have speed also. You have to have method. You have to have accuracy also. बोलते हैं ना जसप्रीत बुमराह मिसाइल गाइडेड यॉर्कर, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी सेम काम आपके साथ भी होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तीनों मेथड्स आई कैन अप्लाई। सो
So I will I can apply the square root method, square method also I can apply anything. So but I will go with minus b plus minus b square minus 4ac. So this will be x equal to, सर पर उसमें भी वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। कोई बड़ी वैल्यूज नहीं आ रही है, देखो जरा, माइनस 30 वो प्लस कैंसिल हो माइनस जाता है डिस्क्रिमिनेंट 900 minus 900 minus 25 into 4 is 900 and 100 into 9 is 900, खत्म तो हो गया। अब बेटा ये चीज तो आपको, ये चीज तो आपको मन में कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, इसलिए मैं आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूं कि 25 तक के स्क्वायर और 11-12 तक के क्यूब, जिसको याद नहीं है याद कर लो। सो दिस विल बी 30 upon 50, that is equal to 3/5. Now my d is equal to 0, so both the roots are equal. है तो है, मैं क्या करूं? सर -3/5 होगा, माइनस b होता है ना, तो बेटा ये -30 नहीं है सर, हाँ सर, हाँ सर। भी आएगा यार, इतनी गलती नहीं करता हूं यार। चलो नेक्स्ट, -3/5 प्लस माइनस 25 सही। सर मैंने सिर्फ x देखा, एक मिनट सर। सर एक +25/8 एक -25/8। हाँ प्लस सर, माइनस 25/8 25/8 होगा यार, क्या करते हो? 64x square will be equal to 625, x square will be equal to 625 upon 64, so x will be equal to plus minus 625 upon 64, which is equal to how much? Which is equal to plus minus 25/8. तो एक वैल्यू +25/8 हो गई, दूसरी वैल्यू -25/8 हो गई। नेक्स्ट, 16x square minus 24x. One value is 0. Another value? So finding. कितना टाइम लग गया? So 3/2. One value is 0 and the other 0 and 3/2 0 and 3/2 यार, कम ऑन यार। इसको क्या करेंगे, देखो इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इस मेथड को अगर मैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac से करने लगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा? एंड द बेवकूफ वर्ड इज फॉर मी, हाँ, क्योंकि आई एम ए टीचर, आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स। तो अगर मैं आप लोगों को इसको बोलता हूं कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देन आई एम द मोस्ट फुलिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, and at the same time I am misguiding you also. What I will do here is I will use the factorization method. देखो ना, यहाँ पे 16x स्क्वायर, यहाँ पे 16x स्क्वायर है, यहाँ पे 24x है, मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ कितना हो गया? 16x माइनस 24, 8x कॉमन ले सकते। चलो आपके दोस्त की बात मान लेता हूँ, 8x कॉमन ले लिया, 8x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा? 2x माइनस 3। नाउ इस एक्सप्रेशन को मैंने फैक्टराइज करके इन तीन एक्सप्रेशंस के बेसिस पे मैंने ब्रेक कर दिया। अब 8 तो मेरा कभी 0 हो नहीं सकता है, तो माय रूट्स विल बी x इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट गिव्स मी x इक्वल टू 3/2। सो माय रूट्स आर x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को जहां पे बेटा आपका C0 आ रहा है, वहां पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं सॉल्व करना है, सीधे सीधे फैक्टराइज करो, आंसर निकालो यार, आगे बढ़ो। वहाँ पे सर कंपलसरी होगा कि एक जो 0 का वो हमेशा 0 ही होगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर जहाँ पे सर हमारा जो कांस्टेंट टर्म है अगर वो 0 है सर, तो फिर उस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रही उसका एक 0 0 होगा, उसका एक रूट 0 होगा, ये बात एकदम कंपलसरी है। ये सवाल करो भाई, ये सवाल बड़ा अच्छा है। इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये वर्ड हटा दो, बाय फैक्टर, हाँ चलो, बाय फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड से जरा a प्लस b a माइनस b। यार चलो अच्छी बात है, फैक्टराइजेशन मेथड से करो, a प्लस बी a माइनस बी, दो एक आंसर आया है मेरे पास, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हो सकता है वो आंसर वही होगा, हो सकता है वो आंसर गलत हो। सर वही a प्लस बी और a माइनस, सर वही होगा। तुम लोग से शांत नहीं रहा जाता है? ये सर वही है। तुम लोगों से शांत नहीं रहा जाता है क्या? चलो देखो, जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये आंसर आया है, हो सकता है गलत हो या सही हो, यार इतना तो समझ लो यार, 2 साल से पढ़ रहे हो मेरे से कि ये एक इशारा है चुप रहने के लिए।
देखो ये जो टर्म है द कांस्टेंट टर्म इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सर आई कैन राइट दिस कांस्टेंट टर्म एज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी. लिख सकता हूं. रिमेंबर आई हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड मतलब मुझे इस नंबर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट लिखना है सच दैट मैं जब उन दोनों नंबर्स को ऐड करूं तो मेरे पास -2a आए. तो मैं क्या कर सकता हूं सर? कैन आई राइट दिस नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ. किसका प्रोडक्ट लिखूं भाई बताओ जरा, तुम ही लोग बताओ. इस नंबर को मैं कैसे ब्रेक करूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को? a प्लस बी ए माइनस बी. प्लस बी माइनस बी. a प्लस बी प्लस ए. तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी करूंगा तो सम मेरा -2a कैसे थोड़े ना आएगा. सम तो मेरा प्लस माइनस साइन आगे लगाएंगे ना ब्रैकेट के बाहर. एक काम करो इस नंबर को ऐसे ब्रेक कर दो. देखो आई कैन राइट दिस एज a माइनस बी प्लस ऑफ a प्लस बी. ठीक है, इसको आप एक काम करो. ठीक है, आप लोग जैसे बोल रहे हो वैसे ही करते. चलो देख लो. x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स a प्लस बी एंड लेकिन फिर तो गड़बड़ हो रही है भाई. सर उससे बढ़िया ऐसा नहीं कर सकते सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर को सर ये x बेटा दैट इज नॉट बेटा दैट इज नॉट द फैक्टराइजेशन मेथड. सर फैक्टराइजेशन ही तो हुआ सर, उसको कर लिया फिर सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सर आ जाएंगे. ऐसे कर लो, ये भी ठीक है. ऐसे कर लो, दैट इज ऑल्सो इक्वली गुड मेथड. सी ही इज टेलिंग अनदर मेथड. यहाँ पे मेरे को बेसिकली यहाँ पे मुझे लिखा हुआ दिख रहा है x माइनस ए होल स्क्वायर. यहाँ पे मुझे दिख रहा है माइनस बी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0. नाउ दिस होल इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. इसको अपन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं. सो दिस विल बी x माइनस a प्लस b and multiplied by x minus a minus b is equal to 0. So x will be equal to b minus a comma a plus b. x will be equal to b minus a comma a plus b. यहाँ पे जो हम लोग इसको डिवाइड कर रहे थे a माइनस b होगा ना. कहाँ पे a minus हाँ b? सर. सर हाँ, a सर, वो माइनस minus वाला b. सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव थोड़ी होता है मतलब. क्या? a माइनस बी. थोड़ी ना लिखेंगे. क्या सर, क्या a सब- minus b एक होगा. मिनट पहले उसकी बात तो सुनने दो. सब्ट्रैक्शन क्या नहीं होता है? सो दिस विल बी a माइनस b और दूसरा रूट हो गया a प्लस बी. लाइक दिस ऑल्सो यू कैन डू दिस. इन फैक्ट दिस इज अ बेटर मेथड. नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू विजुलाइज कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख के आप -2a को कर सकते हो तो यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो. दिस इज इन फैक्ट अ बेटर मेथड. दिस इज लेकिन हमने वो किया उसमें माइनस तो आ नहीं रहा, तो उसको उससे कैसे करेंगे? माइनस नहीं आ रहा है. माइनस लोग को लेकर आइए. माइनस नहीं आ रहा है तो वहां पे आपको कुछ चीजों को चेंज करना पड़ेगा. माइनस लेकर आइए. यही तो आपका टास्क के है. बाहर माइनस लगा देंगे ना. ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दो भाई. आप ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दो. एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो. बेसिकली आपको तो ये 2a को ब्रेक करना है ना. नाउ दिस 2a कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस ऑफ ए माइनस बी. खत्म कहानी. लेकिन ऐसा क्यों ये माइनस को कॉमन निकाल सकते? हमें तो -2a चाहिए ना. आपका फाइनल जो पर्पस हो रहा है दैट फाइनल योर पर्पस इज बीइंग सेटिस्फाइड. आप देखो, चलो इस क्वेश्चन को ऐसे करो. चलो देखो, मानोगे नहीं. जहाँ पूरी इक्वेशन है तो हमने जहाँ 2a की वैल्यू निकाली उधर पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली माइनस तो बाहर ही आने वाला है. चलो देख लो कैसे करेंगे. देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ऑफ
अब प्लस नहीं, यहाँ पे फिर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो इट विल बी x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस a प्लस बी, और यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस ऑफ a माइनस बी कॉमन लो तो यू विल हैव x माइनस ऑफ a प्लस b. Now this is equal to 0. So x minus of a minus b multiplied by x minus of a plus b is equal to 0. So x will be equal to a minus b comma a plus b. Both the ways you can do, no problem, not a big deal. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. Now this is the question. Let me see the time also. Oh God, oh God, time is already over. I'm sorry. आप लोग के साथ पढ़ते पढ़ाते हुए टाइम कब निकल जाता है मुझे भी नहीं चलता है. ठीक है, चलो. So I will see you guys in the next turn. Till then, bye bye. Take care and have a nice time.